Deeply insidious and sinister act, three projectiles were deliberately dropped at Amritsar, the capital of Indian Punjab. While the fourth projectile, which entered in Pakistan's airspace, was neutralized by Pakistan's air defense, and its debris fell at Dinga, which is inside Pakistan. This malicious wholly consistent with the modus operandi of the ruling Hindutva regime, appears designed to falsely implicate Pakistan for targeting Indian civilians and inciting anti-Pakistan sentiment among the Punjabi Sikh population to conveniently externalize the rising communal tensions within India. Knowing the deep-rooted, centuries-old cultural affinity between Pakistani Punjab and Sikh Punjab, long history of communal persecution of both at the hands of extremist Hindutva majority, and the existence of a relation of deep respect between both Punjabs, Pakistan categorically denies any intention or action that will endanger civilian populations in Indian Punjab. Unlike the divisive policies of the Indian leadership, Pakistan remains firmly committed to safeguarding innocent lives and regional harmony. We deeply emphasize with the civilian population, particularly the Sikh community of Indian Punjab, as their lives were endangered by the India through malicious use of projectiles, most probably missiles, to achieve sinister political ends. Conquered with the firing of projectiles, most probably missiles, several armed Indian drones also violated Pakistan airspace by crossing over the international border at multiple places, targeted civilians, martyring one and injuring four, and made attempts to attack military installations, injuring 4 army personnel. One of these drones also struck the Rawalpindi Cricket Stadium, venue for the ongoing Pakistan Cricket Super League, in deliberate attempt to target domestic and foreign cricket players. These drones have been neutralized. Despite repeated provocations, Pakistan, being a responsible state, has so far exercised strategic restraint, acted with maturity, and limited its response strictly to self-defense in accordance with international law and the UN Charter. Nonetheless, in view of this grave and unlawful aggression of firing projectiles, most probably missiles, inside its territory and violating its airspace, Pakistan reserves the right to respond to India at a time, place and manner of its choosing. मैं अपने हम वतन बहन भाइयों को ये अर्ज़ करूँगा कि आपने देखा कि जिस बहादुरी के साथ पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स को गिराया, 2 UAVs को गिराया, वो शायद इंडिया में हजम नहीं हो सका। आज एक पॉलिटिकल बेस्ड एंड मोटिवेटेड स्टेटमेंट इशू की कि कल रात पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन और मिलिट्री जगह के ऊपर अटैक किया। इट्स अ बिग लाई, बहुत बड़ा झूठ है, और उस झूठ बोलने की वजह नज़र आती है। आज जो पाकिस्तान के अंदर, जिसका मैंने अभी इंग्लिश में अर्ज़ किया ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता चले, जो उन्होंने आज जो काम किए हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद से लेके साउथ
और पाकिस्तान तक, कराची तक, करीबन 2 दर्जन जगह के ऊपर वो शर्मनाक, अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। गालबन अपनी खिफत मिटाने के लिए जो उनके साथ हुआ 6 और 7 की दरमियानी रात को, ये एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई कि पाकिस्तान ने कल रात फिर इंडिया के अंदर एक किस्म के अटैक्स किए हैं इन वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, और उसके नतीजे में आज जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में हम कर रहे हैं। व्हाट अ शेम। सो मैं समझता हूँ कि मेरे बहादुर बहन भाइयों पाकिस्तानियों, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट। आपने देखा कि जिस बहादुरी के साथ आर्म्ड फोर्सेस ने और पर्टिकुलरली पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 75 से 80 इंडियन फाइटर जेट्स को उसका मुकाबला किया और 5 को ज़मीन बोस किया और 2 UAVs गिराए, तो वो एक जीती जागती एक आपके पास मिसाल है जो कि अभी चंद घंटे, 36 घंटे पहले गुजरी है। तो इंशाअल्लाह आपके फौजी जवान, आपकी एयरफोर्स, आपकी नेवी, आपकी हुकूमत सब अलर्ट है। अगर किसी किस्म का कोई एडवेंचर इंडिया करेगा, तो शुरू में मैंने अर्ज़ किया था कि जब उन्होंने पहली दफ़ा 23 की रात को जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी अपनी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के बाद, हमारे ख़िलाफ़ हमारे मिशंस को कम किया, हमारे जो मिलिट्री और नेवल और जो एयरफोर्स अटैचीज़ को पर्सोना नॉन ग्रेटा किया, पाकिस्तानियों के वीज़े कैंसिल किए और बॉर्डर अटारी का बंद किया, तो वो हिसाब हमने 24 की सुबह चुका दिया था। जितना उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा था, उसको मैंने यही अर्ज़ की थी कि हम टिट फॉर टैट, कल हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, वो हम इसका जवाब देंगे। जो उन्होंने बहुत ही घटिया और घिनौना काम किया, वो इंडस वाटर ट्रीटी को ये अनाउंस किया कि हम उसको इन अबेंस कर रहे हैं। कोई इंटरनेशनल कानून में इस अबेंस की कोई वैल्यू नहीं है। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अनाउंस किया था कि हम इसको वी विल ट्रीट इट एज एक्ट ऑफ वॉर, ऐलान जंग इसको तस्वर करेंगे। उनके जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस आई थी उसका मुंह तोड़ जवाब भेज दिया गया है 24 अप्रैल को जो उन्होंने भेजी थी। और मैं समझता हूँ कि आप अपने बहादुर आर्म्ड फोर्सेस के लोगों के लिए आप दुआ में याद रखें, जैसे अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से जस्ट 36 घंटे पहले जो कुछ इतना बड़ा एक मुकाबला हुआ और पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़त और अल्लाह ताला ने आर्म्ड फोर्सेस को सुरखरू किया, इंशाअल्लाह आइंदा भी वो आपको माजी की तरह मायूस नहीं करेंगे। बी ब्रेव, खुश रहें, दुआ करें, अल्लाह पे भरोसा रखें। हामीम ला युनसरून। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों और कौमों के लिए ये कुरान हकीम में कहा है कि वेरली इन लोगों के लिए कोई विक्ट्री नहीं है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान विल बी विक्टोरियस अगेन। किसी किस्म की एडवेंचरिज्म उसको उसका भरपूर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं जनरल साहब